किसी ने मेरे को एक बार कमेंट किया था, भैया आप बातें बहुत बढ़िया करते हो, माँ कसम हाथी लगते हो। आई लव दैट कमेंट। तो अब क्या हो गया, मेरे डेड सब्सक्राइबर्स हो गए। पहले 7,000 पे 500 व्यूज, अब 12,000 पे 500 व्यूज। वॉन्डरडा इज अ क्रिएटर जो बाइक जर्नीज करते हैं दूसरी कंट्री में जाके। तो अभी वो अफगानिस्तान चले गए बाइक चला के, और उन्होंने टी शर्ट पहनी, टी शर्ट पे इमोजी बनाया, एक ताली बनाई और यहाँ पे एक बैंड बनाया, तो तालिबान। I did a series called 100 Days of Dreaming where I backpacked all across India for 100 days. Once the 100 days ended, I was close to 1.3 million. Taglangla is the highest point that we crossed. 17,500 feet. वहाँ पे लोगों की छाती फूलती है, वहाँ सांस नहीं आती, सर दुखता है, ये होता है वो होता है। मैं वहाँ बस बैठा हूँ। I did some 100 push-ups there. Can you imagine? It is so crazy. खाली फिजिकल पावर की मैं बात नहीं कर रहा, मतलब I was feeling so confident कि ये कर लिया तो कुछ भी कर लेंगे भाई। तो वो वहाँ पे जाके रियलाइज हो जाती है ये बातें थोड़ी। Every creator starts the same way, with a blank page and a dream that feels little too big for where they are standing. Some dream for a day, some dream for a month, but very few, like our guest today, dream for 100 days straight and put it out into the world. Today on the podcast, we have Ronak Sahni, filmmaker, storyteller, and the mind behind 100 Days of Dreaming, a series that didn't just go viral, it moved people. Ronak's content makes you pause, breathe, and feel something again in an internet that's moving way too fast. And joining him is someone who represents every aspiring creator watching this, Lakshay, who's building, learning, experimenting, and asking the questions every new creator wishes they could ask. Ronak, your reels feel like conversations that we have with ourselves. Do you write from personal experiences or from observing others? How did this entire journey start? First of all, thank you so much for that lovely introduction. मैं खुद सोचने लग गया, वाओ ये तो बढ़िया बोल रहा है। Thank you so much. So coming to a question, honestly, I don't really write very detailed scripts before I record a video. Most of my videos that I do short form, the reels and the YouTube shorts, both are what do you call it? Are voiceovers, and you won't believe it takes me like 10 minutes to write a voiceover. I don't pay much attention to it because I want to keep it in a raw format. Like what I want to put my videos like I'm talking to a friend, and when you talk to a friend you are not that careful. थोड़ा इधर उधर निकल जाओ तो कोई फर्क पड़ता नहीं है. So that's what I want to keep. Obviously it depends on the topic, that if I'm touching any sensitive topic then I would again consider it, review it, but if it's a casual vlog then it has to be casual. So I do not really spend a lot of time scripting my videos. I just try to put in the real experience that I had. Like for example in 100 days, it is the content is like some videos are like so free, like so out of the textbook. Like आप जब YouTube की या Instagram की textbook देखेंगे तो ये वीडियो तो कोई recommend नहीं करेगा आपको बनाना, but वो चला. वो क्यों? शायद इसलिए चला क्योंकि वो original तो था ही, but वो और ओरिजिनल होने से फायदा ये होता है कि बाकी लोग वो नहीं कर रहे हैं. तो आपने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, तो वो थोड़ा एक फन वे में एक अच्छा वो हो जाता है. सो यू शुड ऑलवेज मेक कंटेंट दैट इज ट्रू टू यू विदाउट केयरिंग मच कि हाउ माय ऑडियंस इज गोइंग टू परसीव इट. The raw you without caring how the audience is going to perceive it, because sometimes you are in this dilemma कि यार should I say this, should I not, should I react this way, should I not. Don't care. Whatever is true to you, do that and you will find your audience. Even if the people, if they are already subscribed to you, are not engaging, not liking, move on. You will find new audiences because you are constantly growing. With each day, with each month, each year, you are growing. So content should evolve. That's what I believe in. यार सबसे I think the most important fact that every new creator faces is coming in front of the camera. Like I know a lot of people in my college also and the club that we have started. The main problem that they told me is कैमरा पे उनसे बात नहीं हो पाती है. सही बात है. मतलब दो कैमरा फियर जो है वो उन पे वो आ जाता है. How does a new creator वो कैमरा फियर कैसे निकाले, वो कैमरा से बात करने का आदत या फिर वो हैबिट कैसे बनाए? Discipline is very important in this. One has to be disciplined. What you should do, do not try to become creative on the first day. Do not try to. You first have to master the technicals and the way to speak on camera. How will you improve that? By practicing. The simple answer is practice. But how do you practice? एक habit बांध लो कि इस हफ्ते में 3 वीडियो डालूंगा. 3 वीडियो डालने चाहिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो वीडियो कॉपीड ही क्यों ना हो. Do not
क्लेम के ये ओरिजिनल कंटेंट है, यू कैन ऑल्सो वहां पर कैप्शन में क्रेडिट दो कि ये वीडियो वहां से आया है, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग योर स्किल्स। तो इनिशियली जब हम फिल्म बनाते हैं, फिल्म मेकिंग की अगर मैं बात करूं, जब हम फिल्म बनाने से पहले हमारे लिए एक्सरसाइजेज होती है, जिसमें पहले एक 2 शॉट होता है, एक डायलॉग एक्सरसाइज होती है। तो आप सीधा जाके फिल्म नहीं बना दोगे 3 घंटे की, वो पॉसिबल नहीं है। पहले आप जस्ट डायलॉग एक्सरसाइज शूट करोगे कि इफ 2 people आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, हाउ डू यू शूट दैट। ऐसा नहीं है कि बस कैमरा यहाँ रख दिया कर दिया, बिकॉज द पॉइंट इज इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। सो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। गेट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर and read your lines, whatever you, or just speak your heart out. And one more advice I would like to give: try to record a video where you are narrating me your whole day, like recording, speak in the camera. Day in my life, you should just be in front of the camera और 10 मिनट का एक वीडियो बनाओ, आज मेरे साथ ये हुआ, आज ये बहुत गंदा लड़का था, इसने ये किया मेरे साथ। Just be honest and just say it. So उससे क्या होगा, your hesitation will get out of the way and you will feel much more confident when you are in front of the camera. Before sleeping लोग डायरी लिखते हैं, आप कैमरा को डायरी मानो और आप उस पर अपना कहीं पोस्ट मत करो, बट द आइडिया इज यू गेट कंफर्टेबल, क्योंकि देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस इन आवर हेड कि यार ये मैं ऑनलाइन नहीं बोल सकता, या ये तो इस तरह से नहीं बोल सकता। वंस यू प्रैक्टिस दैट, वो रिमूव हो जाएगा, तो देन यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो रौनक, आई टेल यू ऑनेस्टली, जब मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया तो मुझे लगता था कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो इवेंचुअली मुझे सपोर्ट करेंगे कि बहुत बढ़िया, ऐसे आगे बढ़ो। बट काफ़ी उल्टा हुआ, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मुझे थोड़ा डीमीन कर रहे थे कि क्या कर रहा है, इसे क्या होगा, MBA करने आया तो क्या कर रहा है। तो आई एम श्योर कि जब ये आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब आपने कुछ कंटेंट बनाना शुरू किया और आपको लगा कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, बट जो आपको लगा था आपके फ्रेंड्स हैं वही आपको डीमीन कर रहे हैं, राइट? तो वो कैसे ओवरकम किया आपने? आई वुड से कि आई फील मोहल्ले की आंटी होता है ना, मोहल्ले की आंटी इंटरनेट पे बहुत एम्पलीफाई हो चुका है, हर कोई मोहल्ले की आंटी है जेन्युइनली। एंड इसमें हम क्रैब का भी रेफरेंस देते हैं कि सब लोग क्रैब है, मतलब खाली आप नहीं, मैं भी क्रैब हूँ, हर कोई क्रैब है। और उसमें जब एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है टब से, तो पीपल वुड पुट यू डाउन। द आइडिया बिहाइंड दिस कि उनको, आपको एक आइडिया है उनका आपके बारे में, दे हैव मेड अ इमेज अबाउट यू इन देयर हेड, एंड व्हेंस यू आर ब्रेकिंग दैट इमेज, दे आर नॉट कंफर्टेबल। कि यार उसको लगता था कि आप शाय आदमी हो, या फिर यू आर जस्ट लाइक हिम, कि भाई हम स्टेज पे जाके पब्लिक स्पीकिंग तो नहीं कर सकते, यू आर डूइंग इट, यू आर ट्राइंग टू डू इट। सो कहीं ना कहीं उसको होता है कि यार ये कैसे कर सकता है, ही शुड नॉट डू इट, लाइक क्या कर रहा है तू, बेवकूफ लग रहा है। बट इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, ऐसा नहीं है कि वो जान के कर रहा है, बट इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर कि यार ये कुछ डिफरेंट कर रहा है एंड मैं डिफरेंट नहीं कर पा रहा। So once you are like focused on the goal, then all this become chatter. आप बस करते रहो and you will find कि first 2 वीडियो में people will support you and then वहाँ से comments भी drop हो जाएंगे 3rd 4th में, because आप रोज कर रहे हो। But eventually if you keep at it, you will find your audiences, and then you will find people who truly love your content and they will engage with you, they will support you, they will cheer for you, and that is the right approach for internet. आई थिंक कंटेंट जर्नी में सिर्फ एक ही ब्रेक थ्रू चाहिए होता है लोगों का परसेप्शन बदलने के लिए। तो वो अगर मैं ब्रेक थ्रू आपकी जर्नी में कहूँ तो आपके हिसाब से वो आपकी जर्नी में कौन सा ब्रेक थ्रू था? फर्स्टली आई डू नॉट एग्री के एक ब्रेक थ्रू होता है। इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस इज व्हाट आई फील। यू हैव टू मेक मल्टीपल वीडियोज एंड इन ईच वीडियो समवन विल फाइंड अ वन थिंग यूनिक अबाउट यू एंड दे विल अप्रिशिएट इट। फॉर एग्जाम्पल, किसी वीडियो में हो सकता है कम व्यूज आए, बट पीपल लाइक द वे आई स्पोक, या पीपल लाइक द वे आई रिएक्टेड टू समथिंग, या फिर पीपल लाइक माई कैमरा वर्क, पीपल लाइक माई एडिटिंग। तो वो ग्रेजुअली यू आर गेनिंग ऑडियंसेस कि ओ ये लड़का अच्छा शूट करता है, नाइस नाइस नाइस। बट देन अ डे विल कम व्हेन ऑल ऑफ दिस गेट्स क्लब्ड, एंड देन उसको आप एक ब्रेक थ्रू बोल सकते हो, फिर वो मासेस से कनेक्ट करता है। बट उससे पहले ऐसे छोटे छोटे लैडर्स होती है कि आपने 100 सब्सक्राइबर गेन करे। 100 सब्सक्राइबर गेन करना बड़ी बात है, अगर कोई ट्रूली एक्टिवली आपको फॉलो कर रहा है, कुछ तो देख के फॉलो किया उसने आपको। तो जब वो एक्यूमुलेट हो जाता है ओवर द टाइम, तब वो एक ब्रेक थ्रू बन सकता है। एंड फॉर मी दैट वाज 100 days of dreaming. I did a series called 100 days of dreaming where I backpacked all across India for 100 days. And before I went on that series, I had 12,000 subscribers, and within 60 days I gained over 1 million subscribers. And once the 100 days ended, I was close to 1.3 million, 1.4 million subscribers, I do not remember. And I became the fastest growing YouTuber in all over the world for 2 days. Crazy. So दुनिया में कोई मेरे से फास्ट यूट्यूबर उस समय नहीं था, बट मैं बन गया, मतलब तो ठीक है, बढ़िया है। बट दैट इज लाइक वे लॉन्ग, मतलब बहुत पहले की बात है ये। उसके बाद क्या होता है, यू वुड सी मैनी पीपल जिनको अचानक फेम मिला या अचानक वायरल हो गए,
वो गायब हो जाते हैं आने वाले थोड़े सालों में. Luckily I am still here. I am still trying to do some things because I do not really chase virality. वो वायरल हो गया, मैं वायरल बनाने के इंटेंशन से निकला नहीं था, वो हो गया वायरल. You have to be true to yourself and make content that you are excited about. And once you do that, you will keep finding your audiences and you will stay relevant. इसी के अराउंड मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि एक एवरेज कंटेंट क्रिएटर की लाइफ सिर्फ 4 साल होती है, राइट? तो आपको क्या लगता है कि आपकी कंटेंट लाइफ काफ़ी लंबी चल रही है, तो ऐसा अलग क्या कर रहे हो जो बाकी कंटेंट क्रिएटर्स नहीं कर रहे? मेरे को मतलब देखो, मेरे को भी अभी बोलूँ तो फेमस हुए तो 3.5-4 साल ही हुए हैं. बट मेरे को लगता है कि अभी उससे पहले मैं कंटेंट कर रहा था बट मैं फेमस नहीं था, तो आप उसको कंटेंट क्रिएटर नहीं मान सकते मेरे को. बट व्हाट आई हैव डन इज लाइक I have always shared and talked about this dream of mine that will eventually happen after 5-6 years when I was very young. So now the age is there. मैंने एक सपना शेयर किया था अपनी audiences से कि I want to drive from New Delhi to London, and this I shared in 2016 first time. Then I shared in 2020 again, and then मैं अब तो बोलते रहता हूँ. तो मेरे को था कि once I turn 27 I want to do this road trip. So if you imagine the kind of content I make, you have to imagine yourself as a protagonist of the story. So protagonist का एक गोल होता है. मेरा गोल क्या है? मेरे कंटेंट में मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है कि मेरे को ये लंदन रोड ट्रिप करनी है. तो जब तक ये रोड ट्रिप नहीं हो जाती, बाकी जो सारी मैं चीज़ें कर रहा हूँ वो साइड क्वेस्ट है. तो मैं ये कर रहा हूँ, बेसिकली मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ इस जर्नी के लिए, जिससे ऑडियंस भी जुड़ रही है. बट द मेन थिंग दैट आई वांट टू डू इज दिस. सो आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो पीपल आर स्टिल देयर कि हाँ ये पूरा करेगा. अब ये भी आप उसको ज़्यादा ड्रैग नहीं कर सकते, कब करेगा कर तो ले. So now the time is here, so I will be going on that journey, and that is the main thing that you can say कि इसने मेरी ऑडियंस को अब तक रखा है, या मेरे को एक मोटिवेशन ड्राई हो जाता है एक टाइम के बाद, क्यों करना है भाई. तो मेरा ये अब तक बना हुआ है क्योंकि दिस इज द मेन थिंग दैट आई एम चेजिंग. एक ये भी चीज़ होती है ना, अगर आप इफ़ यू से इट आउट इन द लाउड देन यू आर रिस्पॉन्सिबल. आप अपने को बोलते हैं कि हमें करना है वो. हाँ. जैसे अगर मैंने डाल दिया इन किधर के आई विल मेक 6-pack abs बाय दिस टाइम, तो आई फील रिस्पॉन्सिबल कि नहीं, आई हैव सेड इट. तो बट आई डोंट सी. मैंने अपने एक और मेरा पर्सनल पेज है, उसमें मैंने बहुत बार बोला मैं पतला होकर दिखाऊंगा, आई वर्क आउट, बट आई हैव नॉट. मे बी यू आर नॉट इवन पैशनेट अबाउट इट. नो, सी आई एम पैशनेट. मतलब मेरे को एक अच्छी फिजिक अच्छी लगेगी, बट द थिंग इज मैं ऑडियंसेस के ओपिनियन के बारे में या लोग क्या कहेंगे उससे ज़्यादा केयर अब नहीं करता हूँ. तो अगर मैंने कुछ पब्लिक में बोल भी दिया है और मैं वो नहीं कर पा रहा, तो मैं वो दिल पे नहीं लेता इतना. एक ये है कि उससे मैं थोड़ा डिटैच हो गया हूँ. बट ये जो सपने की हमने बात की है, ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं की है. ये तो मेरे को अपने को ही इम्प्रेस करना है, कि मतलब अपना ही बचपन वाले रौनक को सेटिस्फाई करना है कि वी कैन डू इट. सो वो फंडामेंटल्स में मेरे लिए ज़्यादा काम करते हैं. अभी आपने एक बात बोली कि मोटिवेशन ज़्यादा देर तक नहीं चलता. तो आप 2015 से कंटेंट बना रहे हो, मतलब आप 8 साल बाद आपका ब्रेक थ्रू आया. 8 साल रोज़ कंटेंट बनाना, मतलब हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना बहुत डिफिकल्ट है. मैंने काफ़ी ट्राई करा, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आई कैन एग्री कि बहुत डिफिकल्ट है. तो वो आपको कभी ऐसा लगा कि यार क्या कर रहा हूँ, छोड़ देना, मतलब कुछ और करते? मैंने ना ऑनेस्टली और चीज़ें ट्राई करी बीच में. ये मैं कैजुअली करता था, और मैं साथ में एक अपना प्रोडक्शन स्टूडियो दिल्ली में रन करता था, फ्रीलांस काम करता था, जो अक्सर लोग इस उम्र के, मेरी उम्र के करा करते हैं. तो जब मैं फ्रीलांस करता था वीडियोग्राफी एंड वीडियो एडिटिंग, सो आई रियलाइज कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू. सी, माय फादर हैज हिज ओन बिजनेस and I'm not joining him in his business. So the thing is कि भाई अगर मैं एक वेल सेटल्ड बिजनेस छोड़ के यहाँ पर आया हूँ, तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्या मैं महीने के खाली 50-60 हज़ार रुपये कमाने आया हूँ? नहीं. या फिर मैं महीनों के लाखों रुपए कमाने आया हूँ? वो भी बात नहीं है. मैं यहाँ आया हूँ किसी और ही चीज़ के लिए, जो मेरे को बहुत मूव करती है, जो कि है टू सी दी होल वर्ल्ड एंड मेक वीडियोज अबाउट इट. सो आई जस्ट हैव टू डू दैट. इसीलिए आई हैव बीन एबल टू कंटिन्यू दिस जर्नी, क्योंकि देयर वॉज नो अदर वे. अगर आप खुद को 2-3 चॉइसेस दोगे तो आप फंस सकते हो कि यार अगर ये नहीं चला तो चल मैं ये कर लूंगा, ये मेरा बैकअप हो गया. मेरे पास बैकअप नहीं था. आई वुड सीरियसली से दिस. मैंने दिमाग में सोचा था कि द डे आई हैव टू जॉइन माई फादर्स शॉप, आई एम डेड. आई एम नॉट किडिंग व्हेन आई से दिस. मेरे पापा की चांदनी चौक के अंदर दुकान है, आपने गए होगे तो गलियां हैं वहाँ, इतनी गलियां, धूप नहीं आती भाई वहाँ. करेक्ट. आप समझ रहे हो, धूप नहीं आती वहाँ. और मैं ऐसा बंदा जिसको नेचर पसंद है. मैं एक जगह बैठे रहूँ सुबह से शाम, वहाँ धूप भी ना आए, मैं मर जाऊंगा. मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ. तो मैंने सोच लिया था कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा. तो मैं ऑनेस्टली कॉलेज के अंदर कॉलेज गया ही नहीं. फर्स्ट ईयर गया, सेकेंड थर्ड ईयर आई वॉज वर्किंग.
और माई डीन सपोर्टेड इन मी इन दैट विच इज़ रियली ट्रूली ग्रेटफुल, क्योंकि मेरी अटेंडेंस कम होती थी बट उन्होंने कहा कर लेंगे मैनेज, तू कर ले, क्योंकि उनको दिख रहा था कि मैं सिंसियर हूँ इस चीज़ के लिए। भाई कोई सीख के थोड़ी आता है, ये क्राफ्ट यू लर्न विद टाइम। सो आई वॉज असिस्टिंग पीपल, वर्किंग पीपल, मेकिंग सम लिटिल मनी, बट द मेन थिंग आई वॉज सिंसियर अबाउट माई क्राफ्ट, एंड देन दीज पीपल सपोर्टेड मी। यार he is sincere, we should support him. Even my teacher supported me, my super senior supported me by giving me opportunities कि आप एक्चुअल आओ, एक एक्चुअल प्रोडक्शन में काम करके देखो कैसा लगता है मुंबई में, तो वो सीखने को मिलता है। तो आई थिंक सिंसियर अगर आप होते हो किसी चीज़ को लेके तो वो लोगों को दिख जाता है, एंड देन दे हेल्प यू। आई थिंक इसमें काफ़ी एक हिडन चीज़ है कि सपोज कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब आज काफ़ी लुक्रेटिव करियर है, बट बैक इन 2016-17 इतना लुक्रेटिव नहीं था। तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इसमें, और अब क्या रिएक्शन है? तो YouTube से तो कभी भी उनको नहीं पता था कि पैसा कमाया जा सकता है, बट ये था कि एज आई मेंशन कि आई वाज फ्रीलांसिंग, सो विद फ्रीलांसिंग आई वाज एबल टू मेक डिसेंट मनी व्हिच दे वर हैप्पी विद। दे वर नॉट हैप्पी विद बिकॉज आई हैव फादर का बिजनेस आल्सो, बट दे गेव मी दिस फ्रीडम कि ठीक है, दे टॉक टू मी ऑनेस्टली कि भाई ठीक है, तू 25-26 साल तक तेरे को जो करना है कर ले, तेरे को फ्रीडम है, क्योंकि मैं घर से पैसे ले नहीं रहा, घर पे पैसे दे भी नहीं रहा, बट मैं घर से पैसे ले नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि तू 26 तक जो करना चाहता है कर ले, अगर तेरा करियर चल गया तो तू वही करियो, नहीं चला तो तू शॉप पे आ जाइयो। तो मैं शॉप पे तो नहीं आ सकते, तो करियर चलाना पड़ेगा 26 की उम्र तक। तो वो एक डेडलाइन थी पर्सनल कि भाई करना है। तो आई वॉज 24 आई थिंक, जब 2020, हाँ आई वॉज 24 व्हेन माय चैनल टुक ऑफ। और ये जो recent boom आया है, so after 2020 the lot of creator economy and lot of creators have started coming in. So right now content creation is a career that people are looking towards. पहले जो सब 15, 20, 16 में लोग इतना उसको career साइड नहीं देखते थे, तो side hustle देखते थे। So इस era में as lot of creators are coming in और content भी इतना ज़्यादा बन रहा है, so जो new creators आ रहे हैं, is there a saturation point for the new creators or is there still a lot of people consuming content? Only if you are doing it for the money, then you will get, then consider it saturated. Don't come. If the only goal is कि यार बढ़िया पैसे कमाते हैं ये लोग, मैं भी कमा लूंगा, तो नहीं हो पाएगा, नहीं कमा पाओगे honestly. और अगर वैसे देखा जाए तो भाई अभी पूरा का पूरा इंडिया ही इंटरनेट पे नहीं आया है। लाइक एज वी नो कि जियो के आने के बाद काफ़ी इंडिया इंटरनेट पे आया, तभी से ये बूम होने लगा। एंड अभी तो सारा इंडिया आया भी नहीं है, तो अभी तो और बहुत नंबर्स आने हैं, बहुत तरह का कंटेंट बनेगा, बहुत तरह के लोग अभी, और इंडिया का ऑडियंस मैच्योर भी होता जा रहा है। जैसे जैसे अब अवेयरनेस आएगी तो मैच्योरिटी आएगी। पहले हम भी क्या कंटेंट देखते थे 7 साल पहले, फिर अब हमारा थोड़ा बड़ा लेवल, तो ऐसे लेवल बढ़ेगा। सो अगर इफ यू आर सिंसियर अबाउट योर वीडियोज, योर क्राफ्ट, वट एवर यू वांट टू मेक अबाउट द कंटेंट, देन देयर इज प्लेंटी ऑफ ऑडियंस। It is never going to get saturated because people will see कि यार this guy is doing something. You know कि जो लोग इसको sincerely बहुत टाइम से कर रहे हैं, you know them, you still know them, they are still very much relevant. Tanmay Bhatt is very much relevant. We have seen ups and downs, but he is still there. And internationally, if we talk about MKBHD is still there, Mr. Beast is still there. So Bhuvan Bam is still there, and people love him. He has grown with the audience. The point is, do not stay stuck at the same place. अगर भुवन आज भी वही skits videos बना रहा होता तो chances है शायद लोग drop off हो जाते. But उसकी एज बढ़ी, उसकी maturity बढ़ी, उसने risk लिए. Yes. And then people rewarded कि यार he is improving, he is very serious about his craft. See the show that he has produced, Taza Khabar, it looks so good. So people reward that, but you have to be sincere. If you are sincere, then there is no limit. मतलब sky is the limit for the money that you can make and everything that you can get. But if you are getting into this for this, so not going to sustain. So a lot of times people say, जैसे मैं भी content create करता हूँ, तो a lot of times people tell me collaborate कर. So ये जो collaborations जो होता है, how much of a big role it plays in an aspiring creator, like someone like me or someone like him who is creating content in the start or he has 1,000 or 5,000 followers. तो collaboration कितना बड़ा role play करता है, और आपका when did your first collaboration came in, when did your first brand deal came in, and how was the entire process? So I think collaboration you should definitely do. It has upsides and upsides only if you do it with a same level का creator, then it is much more likely, या फिर वो same genre का तो होना ही चाहिए. One thing I did
वेरी रॉन्ग. व्हाट हैपेंड वाज मेरे 7,000 सब्सक्राइबर थे और मैं कंटेंट बहुत टाइम से डाल रहा था बट व्यूज नहीं आ रहे थे. तो उन 7,000 में से मान लो 500 व्यूज आते, तो उन 500 के अंदर से देयर वाज दिस वन यूट्यूबर जिनके खुद 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे. और बैक बिफोर जियो, इमेजिन 1 मिलियन बिफोर जियो, इट्स क्रेजी. तो वो बहुत बड़े यूट्यूबर, और वो उन 500 लोगों में मेरा कंटेंट देखते थे और उन्होंने बोला यार तू बहुत तगड़ा कंटेंट बनाता है, come you shoot for me, because I was freelancing, so I joined him, I shot for him, ये वो, and then one day he told me कि we can do a collaboration video together, which is a huge deal for me. मेरे को लग रहा है भाई मेरी लाइफ बन गई. आप समझ रहे हो, क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ 3-4 साल से, मेरे नहीं व्यूज आ रहे. हमने कोलैबोरेशन वीडियो डाला, उन्होंने अपने वीडियो पे मेरे बारे में बोला कि लड़का बढ़िया कर रहा है, वो बहुत जेन्युइनली बोला. In a single day, I went from 7,000 to 12,000 subscribers back then on YouTube. तब reels नहीं होती थी, कोई follow नहीं होता था, it's a big deal. तो मेरे को लगा यार सेट हो गया. आई वाज इन टीयर्स के वाओ. नेक्स्ट वीडियो मैंने डाला और कम व्यूज. क्यों? क्योंकि वो ऑडियंस मेरी नहीं थी. अब ऑडियंस नहीं किसी से कमा सकते, क्योंकि उनका है बाइक का कंटेंट. JS फिल्म है उनका नाम, वो उनका है बाइक का कंटेंट, मेरा बाइक से कोई लेना देना नहीं है. तो ऑडियंस आ गई, उनका बाइक तो है नहीं, हटाओ. तो अब क्या हो गया, मेरे डेड सब्सक्राइबर्स हो गए कि अब मेरा 12, पहले 7,000 पे 500 व्यूज, अब 12,000 पे 500 व्यूज. तो अब तो और खराब लगता है देखने में, समझ रहे हो आप. तो यू शुड कोलैबोरेट इन द सेम जॉनर. इवन इफ यू आर एक्सपेरिमेंटिंग, देन एटलीस्ट वो सेम लेवल का क्रिएटर होना चाहिए. ये नहीं कि आपके कम है उसके ज्यादा है, तो चांसेस ऑफ यू गेटिंग डेड सब्सक्राइबर्स आर मच हायर. सम पीपल विल स्टिल फॉलो यू, लव यू के भाई वाओ क्या हमने कुछ रेयर जेम ढूंढा है, आज हमने बढ़िया क्रिएटर ढूंढा है. बट वो लोग आपको कंटेंट आपका देखेंगे नहीं. मेरे को लगता है जो आप खुद से डिस्कवर करते हो ना, उससे आपको अलग लगाव रहता है, रादर देन कोई रेकमेंड करता है. तो ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है. सो जैसे आपने नोटिस किया होगा कि पूरे वर्ल्ड में शॉर्ट्स और रील्स के बाद अटेंशन स्पैम किसी भी इंसान का कम हो रहा है डे बाय डे. तो अगर आज किसी को अपनी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है 2025 में, तो व्हाट वुड यू रिकमेंड हिम कि शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट करना चाहिए, फिर लॉन्ग फॉर्म में जाना चाहिए, या लॉन्ग फॉर्म से स्टार्ट करके शॉर्ट फॉर्म में जाना चाहिए, या पैरेलली स्टार्ट करना चाहिए? 100% शॉर्ट पे फोकस करना चाहिए, बट द स्टाइल ऑफ शॉर्ट्स कैन बी डिफरेंट. यू डू नॉट हैव टू हुक पीपल इन द फर्स्ट 8 seconds. ओके. अब इमेजिन आप, यू हैव टू ब्रेक फ्रॉम द पैटर्न, दैट इज इट. तो अगर आप शॉर्ट्स देख रहे हो, मैं तो मोस्टली क्या हो रहा है, हर 3 सेकंड में लोग कुछ ऐसा कर देना चाह रहे हैं कि मैं रुक जाऊं, है ना. कुछ भी कर देंगे, कोई चिल्ला देगा, कोई नाच देगा, कोई कुछ कर देगा. बट अगर वहां पर एक बंदा है जो ऐसा सिंसियर बैठा हुआ है और वहां शांति है, कुछ आवाज भी नहीं है, और मतलब पहले 2 सेकंड तो शांति है, या वो खाली पानी पी रहा है. कैसे हैं आप? एग्जाम्पल के लिए द थिंग इज कि आपने 2 सेकंड आपने कहा भाई ये शोर क्यों नहीं कर रहा. मतलब यू आर स्टिल ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द पैटर्न. सो यू हैव टू क्रिएट शॉर्ट्स बट ट्राई टू ब्रेक अवे फ्रॉम द पैटर्न. इफ समवन वांट्स टू सी X एंड यू डिलीवर Y, तो वो ऑटोमेटिकली रुकेगा. राइट. कुछ डिफरेंट दिखा ना उसे. तो डिफरेंट हमेशा चिल्लाना ही नहीं होता है. शांति से भी डिफरेंशिएशन क्रिएट किया जा सकता है, या कोई और मेथड से डिफरेंशिएशन क्रिएट किया जा सकता है. और उसके साथ साथ once you have a stable like let's say you have touched 100K on Instagram या फिर short form content, then start YouTube side by side. Start YouTube side by side, because जो main connect लोगों से है वो YouTube से ज्यादा होता है, ऐसा मेरा अभी भी मानना है. short form से उतना connect बन नहीं पाता है. And social media is all about connection. You have done significant walking journeys from Manali to Leh. yeah, that I did, yes. कोई एक चीज जो आपको बहुत हिट हुई वो जर्नी में, और कोई एक लर्निंग जो आप अभी भी लेके चलते साथ में? हम सुनते हैं, मतलब क्या होता है देखो, कुछ अलग ऐसी प्रोफाउंड बात नहीं है मेरे पास बताने को, बट जो भी हम कोट सुनते हैं ना, वो सर के ऊपर से चले जाता है. दे डू नॉट रियली मीन एनीथिंग. सो व्हेन आई से कि आप यू आर ट्रूली लिमिटलेस, समझ नहीं आता, हाँ होगा चल हटा. बट वंस यू डू दिस, सो यू रियलाइज के दीज थिंग्स एक्चुअली मीन अ लॉट. सो फॉर समवन लाइक मी टू बी एबल टू डू दिस, Taglangla is the highest point that we crossed. 17,500 feet. It is so high. वहाँ पे बैग लेके, लगेज लेके मैं वहाँ बैठा हूँ, एंड वो मेरे को लगता है मेरी लाइफ का सबसे पावरफुल मोमेंट होगा. मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा वहाँ, मैं बैठा हूँ, एंड आई वाज इन फुल कंट्रोल. ऐसा लग रहा था, मतलब वहाँ पे लोगों की छाती फूलती है, वहाँ सांस नहीं आती, सर दुखता है, ये होता है वो होता है. मैं वहाँ बस बैठा हूँ, एंड आई कुड वहाँ पे लिटरली I did some 100 push-ups there. Can you imagine? It is so crazy. I was seeing खाली फिजिकल पावर की मैं बात नहीं कर रहा, मतलब आई वाज फीलिंग सो कॉन्फिडेंट कि ये कर लिया तो कुछ भी कर लेंगे भाई. मतलब ये तो बहुत ही टफ है. ये कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कुछ भी किया जा सकता है जीवन में. तो वो वहां पे जाके रियलाइज हो जाती हैं ये बातें थोड़ी सी. नहीं, मेरे पास भी एक सिमिलर स्टोरी है. सो बिफोर माई MBA, लाइक आई टोल्ड यू, आई वेंट फॉर अ 30-day सोलो ट्रिप. सो मैं बनारस गया था, एंड Banaras is in itself is a different vibe. So I was just talking to someone, and
there are some experiences which you know you take throughout your life. और वहाँ पे एक जन ने मेरे को एक चीज़ बोली थी, अभी it would seem like a quote but it has impacted me a lot. So I was just talking to one person and she told me this line and I will never forget this line throughout my life. She told me a Sufi is a normal person. A Sufi is not only thankful for the things he has received but also thankful for the things he has been denied. So ये जो चीज़ है वो मेरे साथ अभी भी मैं लेके चलता हूँ और it would seem like a normal quote to anyone but once you experience that, like you told, आप जब उधर थे आपने जो experience किया, जो आपने देखा कि limitless क्या होता है, तो once you experience अभी आपको वो quote का real मतलब समझ में आता है. करेक्ट. रौनक, और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो आप एमयू में काफ़ी लोगों के फेवरेट क्रिएटर हो, तो सच बोलो, अरे आपके सामने ठीक है. तो आपके फेवरेट क्रिएटर कौन है? यार मेरा फेवरेट क्रिएटर टाइम टू टाइम थोड़ा चेंज होते रहते हैं. आई रियली लाइक, टॉप 3 बता दो. आई रियली लाइक वॉन्डरडा राइट नाउ. ओके. वॉन्डरडा इज अ क्रिएटर जो बाइक जर्नीज करते हैं दूसरी कंट्री में जाके. तो अभी वो अफगानिस्तान चले गए बाइक चला के. क्रेजी. बाइक चला के, वो गुड़गांव में रहते हैं, बाइक चला के चले गए. और उन्होंने टी शर्ट पहनी, टी शर्ट पे इमोजी बनाया, एक ताली बनाई और यहाँ पे एक बैन बनाया, तो तालिबान, तालिबान ऐसे चले गए वहां पे. मतलब बहुत क्रेजी बढ़िया है, बहुत बढ़िया बंदा लगता है. मतलब सी द थिंग इज YouTube, आई हेट व्हेन YouTube becomes a corporation, like people treat it as corporations. मतलब people are 20 चैनल खोल दिए, सब पे व्यूज आ रहे हैं, अच्छी बात है, but I do not really care. I care for the human factor of it. जो human emotions दिखेंगे उस पे I care about that. जो authenticity दिखेगी, मैं बोल नहीं पाता इसे, vulnerability दिखेगी, I care about that. So जब वहाँ पे वो बाइक चलाते हुए मेरे से अपने दिल की बातें कर रहे हैं, बस कुछ बता रहे हैं, तो वो है YouTube मेरे लिए, वो YouTube का एसेंस है मेरे लिए. So I love that. So जो भी raw content बनाता है, raw in the sense honest content, less polished content, I love that. आई थिंक यूट्यूब का असली एसेंस भी वही है. अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और वो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया आपके थ्रू ही, तो वो वही आपकी क्रिएटर की भी विन है और यूट्यूब की वहां विन है. हाँ, मेरे को पसंद नहीं कि ऐसे रोज के रोज 4 वीडियो डाल रहे हैं या हफ्ते के 10 वीडियो डाल रहे हैं. नहीं है, मतलब आप मीडिया कंपनी नहीं हो, बट लोग मीडिया कंपनी बनते जा रहे हैं, जो कि ठीक है. मतलब आपका अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है यूट्यूब को लेके, मैं नहीं मानता उसे. मतलब जब चीजें क्वांटिफाइड हो जाए तो थोड़ा इशू है. मैं अभी भी क्रिएटिविटी की साइड ज्यादा हूँ. मतलब मेरा पैसा कमाने में इतना बिलीव है नहीं. हाँ. मेरा थोड़ा अभी भी पर्सपेक्टिव वही है, तो इसलिए तो मैं कितनी चीजों पे वीडियो ही नहीं बनाता. मतलब आप मेरे चैनल अभी खोलो, 3 महीने पहले वीडियो डाली थी, कोई वीडियो ही नहीं डाली. करेक्ट. तो भाई आप सोचो कि कैसे, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है जब मैं 3 महीने बाद काम करता हूँ. बट ये है कि मैं जब 3 महीने बाद काम करता हूँ तो मैं बहुत सिंसियरली काम करता हूँ. फिर दिन क्या रात क्या आई डू नॉट नो, देन इट्स ओनली मी. वो मेरे लिए वर्क करता है. आई रियली लाइक द वे आई फंक्शन. नाइस. एक रैपिड फायर करते हैं. योर मोस्ट अंडररेटेड वीडियो द इंटरनेट डिडंट अंडरस्टैंड. I made a video on Ramlila. I thought वो बढ़िया वीडियो होगी, but that tanked and I felt heartbroken कि यार इस पे तो बिल्कुल ही व्यूज नहीं आए. एडिटिंग की कमी रही होगी मेरे को लगता है उसमें, but that video I really hope कि ज्यादा लोगों ने देखी होती. उसमें पता है क्या इंटरेस्टिंग चीज, उसमें I have followed this character जो कि लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहे हैं. आप रियल लाइफ में उनसे मिलोगे, he stammers. वो सीधी लाइन बोल नहीं पाता है. He's like, मतलब I'm not pretending, but he stammers. He cannot even speak one line. वो रामलीला में मतलब 100,000 लोगों के सामने खड़े होकर लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहा है फुल कॉन्फिडेंस से, विदाउट एनी स्टैमर, और आवाज इतनी सॉलिड कि आपको कांप जाओगे आप अंदर से. तो वो बहुत तगड़ी स्टोरी थी. मेरे को लगा इस पे तो बुरा लगा. That's how life is. It happens. Learning always. Yeah. A place that changed you more than any person ever did. Narmada Parikrama I did in March 2023. Any reason why? लंबी स्टोरी हो जाएगी. एक सेंटेंस में सम अप करना हो तो. सो आई गॉट टू सी, मतलब हमेशा गिव एंड टेक देखा है मैंने लाइफ में. ट्रांजैक्शनल होता है. आप भी ये पॉडकास्ट ले रहे हो, आपको कुछ मिल रहा है, मैं पॉडकास्ट दे रहा हूँ, मेरे को कुछ मिल रहा है, तभी कुछ होता है. कुछ ऐसा जिसपे सामने वाले को कुछ नहीं मिल रहा है, वो फिर भी कर रहा है आपके लिए. तो वहां पे मैंने ऐसी काइंडनेस देखी. पीपल आर गिविंग, they do not want anything in return, they do not expect anything in return. So that is very close to me. और हाँ, एक और बात, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है. Correct. Your most used phrase while scripting. सुकून बोल सकता हूँ, but I'm trying to not use that word a lot anymore. But पहले बहुत होता था कि ये जगह में बहुत सुकून है, वैसा.
मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं और बेटर उस जगह को डिस्क्राइब कर पाऊँ। या फिर कुछ लोग कभी बोलते हैं ना लोग, ये जगह तो इतनी बढ़िया थी कि क्या बताऊँ। अरे बताना, तेरा काम यही है। समझ रहे हो आप? करेक्ट तो इसलिए Your favorite hate comment? हेट कमेंट, किसी ने मेरे को एक बार कमेंट किया था, भैया बातें बहुत बढ़िया करते हो बट बढ़िया माँ कसम हाथी लगते हो। आई लव दैट कमेंट। मतलब वो बढ़िया बोला उसने, मतलब उसने बड़े फन वे में बोला था, पर मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अरे क्या बोल रहा है। फनी था वो, अच्छा था। ये तो आपकी अच्छी बात है, आपने उसको अच्छे उसमें लिया। अरे उसने भी अच्छे वे में ही बोला था। Correct, उसने correct. ऐसे नहीं बोला था, मतलब वो मस्त था, वो फन था वो। You have traveled a lot across a lot of places. A comment from a stranger that stayed with you. एक बार एक रिक्शे वाले ने मेरे को बोला था कि आप बड़े नेक आदमी हो। उससे मेरी बात भी नहीं हुई थी कुछ, तो मेरे को पता नहीं क्यों बोला उसने, तो वो मेरे को अभी भी याद है। मतलब आपने मेंशन किया तो सबसे पहले मेरे दिमाग में वही आया। तो आई थिंक वो ये बिहार में हुआ था, मुंगेर में। Thank you so much, Ronak. Thank you for guys for joining having us me. today. Thank you. It was a pleasure to host you, and we hope your Delhi to London trip is a great success. करेक्ट, एज एन एस्पायरिंग क्रिएटर आई लर्न अ लॉट एंड आई थिंक ऑडियंस ने भी काफ़ी कुछ सीखा एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ट्रिप। Thank you so much guys, means a lot, means a lot. so much. Thank you.